Good morning, students. Your exams are, your unit tests are over now, and I hope that you all have submitted your files in the office. Okay, and those who have not submitted, please submit it as early as possible because already the date 26 is over now. So today I am going to explain you lesson number 8 of English, a great leader. Okay, for that lesson number 7 actually be a writer is not there for the examination. Now we are going to start from lesson number 8, a great leader. Lesson number 8, a great leader, 16, page number 16, you have to open it. I will read one paragraph and after that I am going to explain it. So concentrate on reading also. Whenever I am reading the line, please keep your finger on the line, keep open your textbook in front of you and keep a finger on your line so that you will understand it correctly, how to read and what is the meaning of the hard words. Everything I will explain you. Okay, so let us start the chapter now. Mahatma Gandhi was one of the greatest leaders of the world. Other leaders win wars by hurting others and killing them. Mahatma Gandhi did not use any arms and weapons like guns, rifles or bombs. Okay, now see, in the last week only, we have starting of this month on 2nd of October we have celebrated the birth anniversary of this great leader Mahatma Gandhi. I have seen that many of the students, you have made slogans very nicely, very good slogans and photographs also of Mahatma Gandhi very nicely. So now we are going to learn something about his dress up style and why he has started wearing and how was Gandhiji when he was young. Okay, so let us see now. So Mahatma Gandhi, you know कि before 1947 our country India was under the British rule. Okay, so India जो थी वो British rule के under में थी and some of these great leaders they came forward for in the struggle, they fought for the struggle of freedom and then we achieved independence in 1947. So Gandhiji was among one of those great leaders who fought the war of independence. Okay, so other leaders, the leaders which were there other than Gandhiji, win wars by hurting others and killing them. अब when we talk about war, अगर हम बोलते कि झगड़ा हुआ, ये झगड़ा किया, तो झगड़ा बिना मारपीट के तो होती नहीं है. So they win war by hurting and killing them. Mahatma Gandhi did not use any arms and weapons like guns, rifles or bombs. पर महात्मा गांधी जो थे, महात्मा गांधी को बिल्कुल ही never liked this using weapons and all that. वो उनको guns, bombs ये सब use करना, किसी को hurt करना weapon से, ये उनको बिल्कुल ही नहीं पसंद था. Okay, he was against all those things. And yet he won the war of independence. Okay, and still Gandhiji was successful in winning the war of independence without using any weapons. People lovingly call him Bapu or Bapuji, father of the nation. People lovingly call him. मतलब people उनको प्यार से क्या बुलाते थे? बापूजी. जैसे एक father अपने बच्चों का care करता है. Okay, like that Mahatma Gandhi used to take care of the people of his nation. That's why all the people lovingly call him Bapuji or Bapu or Bapuji. Okay, Bapuji means what? Father. He was father of the whole nation. Now Gandhiji was a man of iron will. If he decided to do something, he did it, no matter how difficult it was. Now Gandhiji was a man of iron will. मतलब गांधीजी जो थे उनका जो डिटर्मिनेशन था वो काफ़ी पक्का रहता था. मतलब एक बार जो उन्होंने मान लिए तो he used to do it. Okay, whatever worst situation may be, but he will never go back. He will follow whatever he has decided. Okay, so one day he decided that he would have an early morning prayer every day. From that day onwards he never missed the prayer. Now one day he decided that every morning after getting up, first he will take a bath and then he will pray. Okay, मतलब रेगुलरली वो प्रे करेंगे, मतलब मिस आउट करेंगे नहीं. जैसे प्रेयर्स हम कब करते हैं? मॉर्निंग में करते हैं, इवनिंग में करते हैं. कभी हमको लेट हो गया या कुछ हो गया तो वी मिस आउट आवर
प्रेयर हम क्या करते हैं, सुबह का प्रेयर हम छोड़ देते हैं कि चलो इवनिंग में आके प्रेयर कर लेंगे, पर गांधी जी वंस ही डिसाइडेड कि मैं सुबह एवरी मॉर्निंग अर्ली आफ्टर गेटिंग अप आई विल डू प्रेयर, ओके, आई विल प्रे द गॉड। तो फिर तब से उन्होंने टिल लास्ट, टिल द एंड ऑफ हिज लाइफ, उन्होंने एक दिन भी, मतलब मे बी वॉट एवर द वर्स्ट सिचुएशन मे बी, सो वो ही हैड नेवर मिस्ड हिज प्रेयर। Gandhiji gave a lot of importance to truth, simplicity and non-violence. Now Gandhiji, in his life he gave importance to three main thing, that is truth. Truth means सच्चाई, उनको झूठ बोलना बिल्कुल नहीं पसंद था. He hated the people who lie others. Okay. Then simplicity, उनको simplicity मतलब simple living, high thinking, हाँ, सिंपल कपड़े, सिंपल सब चीज़ सिंपल, उनको दिखावा वगैरह पसंद नहीं था. एंड नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस मतलब मारा पिटी, वायलेंस करना उनको बिल्कुल नहीं पसंद था. ओके, ही वॉज अगेंस्ट वायलेंस. सो दैट इज नॉट हर्टिंग अदर्स. वही मतलब वायलेंस का मतलब क्या होता है कि दूसरों को नुकसान पहुंचाना, ये उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद था. गांधी जी's ड्रेस वॉज वेरी सिंपल, जस्ट अ लॉइन क्लोथ, अ धोती वन अबव द नी. इफ यू हैव सीन गांधी जी, अगर आपने गांधी जी का पोस्टर बनाया है तो यू मस्ट हैव सीन कि गांधी जी जो थे वो ही यूज्ड टू वेयर अ धोती, और वो धोती भी इतना लंबा नहीं होता था, इट वॉज अबव द नी, घुटनों के ऊपर ही होता था, घुटनों तक या घुटनों से थोड़ा ऊपर होता था, घुटनों से नीचे नहीं. सो ही यूज्ड टू वेयर दैट टाइप ऑफ क्लोथ्स एंड समटाइम्स अ शॉल, उसके ऊपर एक ये रहते थे शॉल. ओके, सो could he not afford fancy fashionable clothes? Of course he could, but this simple loin cloth was a deliberate choice. How did he came to make this choice? Now before गांधी जी जब पढ़ते थे, when he was a lawyer, he was a barrister, बैरिस्टर जब उन्होंने किया था, at that time he belongs to a rich family, so he had everything. Okay, उसके उनके पास में पहनने के लिए एक से एक variety of dress थे. But then also still गांधी जी decided to wear this loin cloth. Why? Now let us see the reason behind it. हम अगले पैराग्राफ में ये देखने वाले हैं कि why it was his deliberate decision. Deliberate decision मतलब उनकी खुद के इच्छे से, उनकी मर्जी से उन्होंने ये किया था, किसी ने उनको जबरदस्ती नहीं किया कि you leave that fashionable clothes, leave away and you wear such type of clothes. किसी ने उनको जबरदस्ती नहीं किया. It was his own decision. तो ये decision उन्होंने क्यों लिया? What was the situation? In which situation he took this decision? Let us see now in the next paragraph. कि उन्होंने ऐसा क्यों किया. वंस गांधी जी वॉज ऑन अ लेक्चर टूर इन ओडिशा. ओके, ओडिशा, ही यूजुअली मेन एंड वुमेन गैदर्ड इन लार्ज नंबर टू लिसन टू हिम. सो वन डे ही वॉज इन लेक्चर टूर. उनका एक लेक्चर टूर था ओडिशा में. ओडिशा में जब भी मतलब वेर एवर ही यूज टू गो, तो जब भी ये जाते थे तो क्राउड में मैन एंड वुमेन दोनों रहते थे. बट हियर इन ओडिशा व्हाट हैपेंड कि इन ओडिशा हाउएवर वुमेन वर नॉट सीन एट दीज पब्लिक मीटिंग्स और लेक्चर. कि उड़ीसा में जो वुमेन्स थे दे नेवर यूज टू अटेंड सच लेक्चर्स. वो लेक्चर्स अटेंड करने नहीं आते थे. नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? तो जब गांधी जी ने पता किया कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, कि उड़ीसा में ही क्यों ओनली जेंट्स आर प्रेजेंट एंड वुमेन्स आर एब्सेंट, व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? ओके, सो ऑन मेकिंग इंक्वायरीज गांधी जी फाउंड दैट द पीपल इन दैट पार्ट of the country was so poor that the women folk had not a decent thing to wear. Therefore, they kept away from public functions. So, when Gandhi ji inquired, जब उन्होंने इंक्वायरी की तो उन्हें ये पता चला कि जो वुमेन फोक है, अब नेचुरली जब हमको बाहर जाना होता है, when we go out for some function or some program, हम जो सिंपल सा एक जो अच्छा सा कपड़ा होता है जो हम घर पे नहीं पहनते, जो डेली वेयर में नहीं पहनते, वो कपड़े पहनकर हम जाते हैं बाहर. बट द वुमेन फोक इन ओडिशा में इतने पुअर थे, वो लोग इतने गरीब थे कि उनके पास में पहनने के लिए ढंग से कपड़े भी नहीं थे वुमेन के पास में. तो जेंट्स तो कैसे भी दे कैन मैनेज, वो किसी भी तरह का कपड़े पहनकर मैनेज कर सकते हैं. बट इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ वुमेन टू गो आउट इन सच अनटाइडी ड्रेस. सो इसीलिए उन्होंने बाहर जाना ही छोड़ दिया. लेडीज़ ने बस घर पे ही रहती थी, वो बाहर जाती नहीं थी, क्योंकि उनके पास में बाहर जाकर अटेंड करने के लिए कोई ड्रेस ही नहीं था. After listening this, okay, therefore they kept away from the public functions. Gandhiji was deeply pained to hear this. From that day, he decided to wear the bare minimum of clothes, be it cold or hot. He will never change his simple dress. Now, after listening this, जब उनको ये पता चला कि that women's in such part of a country and in many places they don't have the decent dress to wear to go outside. That's why they are inside the house only. They live inside the house. They don't go out. Okay,
सो व्हेन ही हर्ड दिस ही वाज डीपली पेन, उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई. ही फेल्ट द पेन और एंड फ्रॉम दैट डे ही डिसाइडेड कि मैं भी सिंपल ही क्लोथ पहनूंगा जितना मेरे शरीर को ढकने के लिए ज़रूरी है. So he has decided to wear a dhoti which was there above the knee and a shawl. Okay, and sometimes a shawl, not always, but sometimes a shawl. Whether what may मतलब he is not bothered about the season कि भाई हाँ अभी ठंडी आ गए हैं तो अब मैं दूसरा ड्रेस पहनूंगा, फुल पैंट पहनूंगा, सॉक्स पहनूंगा, दिस एंड दैट. नो. या गर्मी हो गया, गर्मी आ गई तो देन ऐसा कुछ भी नहीं. जो उनका ड्रेस था ही केप्ट ऑन वॉट एवर द चेंजेस इन द सीजन में बी, बट ही यूज टू वेयर हिज dress which he has decided. Okay, once he had gone to London to attend a very important conference. आपको पता है कि जो कॉन्फ्रेंसेस होती है, जो मीटिंग होती है, जो शेड्यूल्ड होती है, वो इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने के लिए या ये करने के लिए. सो किंग जॉर्ज ऑफ लंदन गेव अ रिसेप्शन टू द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कॉन्फ्रेंस. तो उस कॉन्फ्रेंस के जितने भी पार्टिसिपेंट है उनको किंग जॉर्ज ऑफ इंग्लैंड ने इन्विटेशन दिया था अपने घर में. ओके, एट हिज पैलेस. Now people received by the king have to be dressed up in a certain way. Now it was a party, it was a conference, it was a reception, okay, for the participants of conference given by a king. हमको बुलाने वाला कौन है, इन्विटेशन देने वाला कौन है, किंग. अब किंग के पार्टी, किंग के प्रोग्राम में हमको किंग के घर में मतलब किंग के पैलेस में जाना है, तो विच टाइप ऑफ ड्रेस पीपल यूज टू वेयर, वो एक बहुत ही अच्छा ग्रैंड क्लोथ दे यूज टू वेयर. ओके, देयर वाज अ पर्टिकुलर, क्योंकि इन्विटेशन वाज गिवन बाय द किंग. At that time England ruled over India. और उस वक्त जो था India was ruled by England. India पे कौन रूल करता था, England. Okay, so people in England wanted to know if Gandhi ji would change the style of his dress to see the king. Now Gandhi ji was also invited for the conference. He was also a participant of conference. So वो भी king के palace में गए. तो all the people they were those who were present there, जो वहाँ पे present थे, उन्होंने सोचा कि let us see कि हाँ गांधी जी कम इन विच ड्रेस. मतलब उन्होंने तो ये लिया था शपथ जिसे कहते हैं, मतलब ही हैज डिसाइडेड, ही वाज डिटरमाइंड दैट कि मैं जो ये जो कपड़ा है मैं यही पहनूंगा. सो पीपल वर ईगर टू सी हिम, कि पीपल वो लोग देख रहे थे कि भी गांधी जी अपना ड्रेस चेंज करते या वही ड्रेस पहन के वो प्रोग्राम में आते. ओके, सो गांधी जी मेड इट वेरी क्लियर दैट ही वुड बी ड्रेस्ड इन हिज यूजुअल वे. Even when visiting the King of England, he would wear the dress of the people whom he represented. Gandhi ji was not bothered by the style of dress the British approved of. Now what happened कि गांधी जी ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया. He has made it clear that I will wear the dress which the people of my country used to wear. जो जैसे जो गांव के लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, वो जैसे कपड़े पहनते हैं वैसे. ऐसा नहीं कि आई वॉज इन्वाइटेड बाय द किंग, मैं आई एम एन इन्वाइटी ऑफ द किंग, मैं किंग का इन्वाइटी हूँ तो आई विल ड्रेस इन अ डिफरेंट ड्रेस और फिर बाद में जाकर मैं अपना पुराना ड्रेस पहन लूंगा. नो, ही हैज मेड इट वेरी क्लियर कि दैट आई विल कम टू अटेंड द रिसेप्शन वेयरिंग द सेम ड्रेस विच आई यूज टू वेयर यूजुअली. जो मैं हमेशा पहनता हूँ वही ड्रेस पहनकर मैं रिसेप्शन में आऊँगा. ओके, कि वो उन्होंने क्या ड्रेस रखा है, वो व्हाट ड्रेस दे हैव केप्ट, उससे उनको कुछ लेना देना नहीं था. ही टोल्ड, इज मेड इट क्लियर कि मैं अपने ही ड्रेस में आऊंगा. ओके, सो लॉन्ग एज द पुअर पीपल as the poor people in his country did not have even clothes to wear. So गांधी जी ने बोला कि जब पीपल के पास में, लोगों के पास में ही सफिशिएंट क्लोथ नहीं है, तो मैं उस तरह महंगे क्लोथ्स पहन के या एक्सपेंसिव क्लोथ्स और ये सब पहनकर मैं क्यों जाऊं. ओके, so finally the king had to welcome at his reception the great man dressed in a simple loin cloth and a shawl. So now the king, he don't have any other alternative. उसको ये ग्रेट मैन की तरफ देखिए, उनको और ज़्यादा रिस्पेक्ट बढ़ गया और उन्होंने गांधी जी को उसी तरह से प्रोग्राम उनके जो रिसेप्शन था उसमें वेलकम किया. ओके, द किंग हिमसेल्फ वॉज ड्रेस क्वाइट एक्स्ट्रावेगेंटली. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स्ट्रावेगेंटली? किंग जो थे, अब नेचुरली आपने अगर देखा होगा, सो द ड्रेस ऑफ किंग का ड्रेस कैसा होता है कि मस्त लॉन्ग कोट जैकेट जैसा कोट होता है, फिर उसमें और क्या क्या वो लोग एक्स्ट्रा ओढ़ते हैं, ऊपर से वो रखते हैं, सब ऐसा. सो द गांधी जी ने क्या बोला, द किंग वॉज ड्रेस्ड एक्स्ट्रावेगेंटली. एक्स्ट्रावेगेंटली मतलब बहुत ज़्यादा कपड़े पहने थे उन्होंने, रिक्वायरमेंट से भी ज़्यादा, जस्ट टू डेकोरेट हिमसेल्फ, अपने आप को अच्छा दिखने के लिए. गांधी जी वॉज आस्क्ड वेदर ही हैड इनफ क्लोथ्स ऑन फॉर द मीटिंग विद द किंग. ही रिप्लाइड
दैट द किंग हैड इनफ क्लोथ्स ऑन बोथ ऑफ देम। जब गांधी जी से ये पूछा गया कि मतलब आर यू गोइंग टू चेंज द ड्रेस, कि आप कोई ड्रेस चेंज करने वाले हैं या आपके पास में ड्रेस है कि आप वो प्रोग्राम जाके अटेंड करें, गांधी जी हैड रिप्लाइड कि नो, जो किंग है उसके पास ही इतना एक्स्ट्रा ड्रेस है कि आई डोंट नीड टू वेयर एनी एक्स्ट्रा ड्रेस। मुझे एक्स्ट्रा ड्रेस, मेरे पास जो ड्रेस है जैसे मैं यूजुअली हमेशा पहनता हूँ वही ड्रेस पहनकर मैं आऊँगा मीटिंग अटेंड करने, रिसेप्शन में। ओके, उन्होंने जो पहना है किंग ने, वो दैट इज सफिशिएंट फॉर बोथ ऑफ अस। उन्होंने मेरे तरफ, मेरे हिस्से का भी उन्होंने ही पहन रखा है। ओके, मिलियंस ऑफ पुअर पीपल इन इंडिया फेल्ट हैप्पी दैट महात्मा गांधी ड्रेस लाइक देम। तो पीपल वेर वेरी हैप्पी, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि भाई जिस तरह से हमारे पास, हमको भी उनसे शर्म करने की जरूरत नहीं है, जैसे हम कपड़े पहनते हैं वैसे ही वो पहनते हैं। सो दे वर वेरी वेरी हैप्पी, दे फेल्ट वेरी हैप्पी। ऑल्दो महात्मा गांधी डिड नॉट यूज एनी डिस्ट्रक्टिव वेपन्स। महात्मा गांधी ने अपनी लाइफ में कभी भी कोई डिस्ट्रक्टिव वेपन्स नहीं यूज किया उन्होंने, लाइक बॉम्ब्स, राइफल्स एंड ऑल दैट। ही हैड मिलियंस ऑफ स्टंच फॉलोवर्स। गांधी जी शोड, नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टंच फॉलोवर्स? स्टंच फॉलोवर्स मीन्स कि जो उनके ही पाथ में फॉलो करते हैं, ये नहीं कि आज इस लीडर के पीछे कल उस लीडर के पीछे, नो, दे यूज टू फॉलो गांधी जी ओनली। ओके, उन्होंने गांधी जी का साथ कभी नहीं छोड़ा, वॉट एवर द कंडीशन मे बी। गांधी जी शोड ऑल द सप्रेस्ड पीपल इन द वर्ल्ड द न्यू पाथ ऑफ सत्याग्रह। उन्होंने सत्याग्रह का पाथ की भाई बिना वेपन्स यूज किए भी हम लड़ सकते हैं। तो ये सत्याग्रह का जो पाथ है ये उन्होंने लोगों को सिखाया। He is remembered for his greatness not only in India but in all the part of the world. For his greatness he is always remembered by the people till now। हमने अभी देखा ना, अभी तो गांधी जी नहीं है, still we are remembering him। आज भी हम गांधी जी का बर्थ एनिवर्सरी विद कितने अच्छे से धूमधाम से मनाते हैं। yes or no, we have different competitions are held in schools, colleges। okay, so ये only ये जो चैप्टर 8 है, एक्चुअली ये चैप्टर 8 भी हम कट करने वाले थे, बट इसमें और है, लोकमान्य तिलक इज ऑल्सो देयर एंड सावित्री बाई फुले इज ऑल्सो देयर, बट आई मतलब वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन यू ओनली अबाउट अ ग्रेट लीडर महात्मा गांधी, बिकॉज महात्मा गांधी का पढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अभी आपने रिसेंटली कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किए, तो यू शुड नो अबाउट महात्मा गांधी। ओके, दैट्स वाई। सो नाउ वी विल सॉल्व द एक्सरसाइजेज बेस्ड ऑन दिस हार्ड। ओके, एक्सरसाइजेज में हम क्वेश्चन आंसर्स नहीं लेंगे, हम देखते हैं कि इसमें लिविंग दिस क्वेश्चन आंसर्स, अगर हमको सिंपल एक्सरसाइजेज इसमें वी विल टेक ओनली मीनिंग्स आर देयर। ओके, मैं आई विल मार्क यू द एक्सरसाइजेज विच आर देयर एंड दैट आई विल सेंड, वी विल सेंड यू थ्रू द ऐप। ओके, असाइनमेंट में के थ्रू आपको एक्सरसाइजेस मिल जाएंगे ऑफ दिस चैप्टर। ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स वगैरह नहीं है इस चैप्टर में। वी आर नॉट गोइंग टू टेक ऑल द क्वेश्चन आंसर्स एंड ऑल दैट, वी आर गोइंग टू टेक ओनली फ्यू ग्रामेटिकल एक्सरसाइजेज, जो ग्रामर बेस्ड एक्सरसाइजेज है, जैसे ग्रेट है, ग्रेटनेस है, ठीक है, ग्रेट का ग्रेटनेस करना, ऐसे जो सिंपल एक्सरसाइज है दैट वी आर गोइंग टू